माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना 7वां लगातार बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार चमक रही है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है। The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Kharif, केंद्रीय बजट 2024-25 में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं की पहचान की गई है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी का सुधार। The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. We particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period.
with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये बजट गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर लाने वाला बजट है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए
किसानों को मदद की घोषणा की गई है। देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश कर दिया। बजट पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को ऐतिहासिक बताया और मोदी सरकार द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला कदम बताया। ये 4 पिलर पर खड़ी है पूरी बजट। वो है महिला, युवा, किसान, मजदूर। चाहे एमएसएमई को सुविधा दिया जाए, चाहे कृषि के सेक्टर को, चाहे एक्सपोर्ट के सेक्टर को। ये बेसिक बजट जो है यही 4 पिलर पर खड़ी है और उसके लिए जिन जिन स्टेक होल्डर की ज़रूरत है उनको भी मजबूत किया गया है, चाहे उद्यमी हों चाहे अन्य हों, तो ये किया गया है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो सारे मिनरल झारखंड चले गए थे और उस समय लालू जी, कांग्रेस, हम लोग सब लोगों ने एक विशेष पैकेज की मांग की थी। कांग्रेस ने नहीं दिया, लालू जी उसमें किंग मेकर कहलाते थे, उन्होंने भी बिहार को नहीं दिया। जब कांग्रेस ने नहीं दिया कि कल तक चिल्ला रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, नरेंद्र मोदी ने ही जब प्रधानमंत्री बने तो 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, जो 2 लाख करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ। और आज जो उन्होंने घोषणा की है वित्त मंत्री महोदया ने, वो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में एनडीए सरकार ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। 7वीं बार लगातार उन्होंने देश का बजट प्रस्तुत किया है संसद में, और हमारे देश की जो आबादी है 65% से अधिक युवा हैं, 35 वर्ष से कम आयु के, और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के बहुत सारे प्रयास इस बजट के माध्यम से हुए हैं। हमारी सरकार आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए टॉप 500 कंपनीज़ में भेजने जा रही है, मौका देगी इसका। इसके साथ ही युवाओं के प्रशिक्षण पे ध्यान दिया गया है। 20 लाख के करीब युवाओं का प्रशिक्षण किया जाएगा, और उच्च शिक्षा के लिए जो युवा हमारे एजुकेशन लोन्स लेते हैं उसमें भी लगभग 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई है। साथ ही अगर हम देखें तो सरकार ने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो तरुण स्कीम थी उसमें 10 लाख से बढ़ोतरी करके 20 लाख किया है, और जो MSMEs हैं ग्रास रूट पे जिनके माध्यम से रोज़गार सृजन होता है, MSMEs के लिए की भी एक अलग योजना लेकर सरकार आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए सरकार ने बेहतर इसमें प्रावधान किए हैं। साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए जितने स्कीम्स हैं उसके लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो सरकार ने जो पहले भी कहा था कि युवा, महिला, किसान और गरीब ये हमारे स्तंभ हैं, इसी पर सरकार काम कर रही है। कृषि में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाना या डिजिटल क्रॉप सर्वे करना, और गरीबों के लिए जैसे PMGSY के अंतर्गत 25,000 के करीब नई बसावट हैं जिनको जोड़ने की सरकार ने कोशिश की है, या 3 करोड़ नए आवास बनाए जा रहे हैं, या PM सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को रूफटॉप सोलर योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं सरकार के, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बनाया गया है। वहीं बजट पर बात करते हुए वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने बजट को मजबूत बजट बताया, तो कई सांसदों ने इस बजट को समावेशी बताया। वहीं बिहार से युवा सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार के विकास के लिए इस बजट को अहम करार दिया और सर्वांगीण विकास वाला बजट बताया। इस बार सरकार ने जो विकसित भारत का कि उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी 9 प्राथमिकताएं तय की है। उस 9 प्राथमिकताओं में जैसे कि भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहयोग किया जाएगा। पहली बार किसानों की वैरायटीज़ के लिए, यील्ड्स के लिए, उनकी सीड्स के लिए, बीज के लिए रिसर्च पे जोड़ दिया है। अभी तक तो केवल किसानों के उत्पादन की बात होती थी, MSP की बात होती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती थी। आज उस MSP से बढ़ के किसान की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि किस तरह से किसान की उत्पादकता बढ़े, और उत्पादकता में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो FPO है, जो पिछली बार कहा था कि 10,000 FPO बनाएंगे, उन FPOs के साथ इंगेज करके किसानों की उस उत्पादकता के साथ उनकी आय को, और दूसरी तरफ आपने कहा यूथ के उसके स्किल के लिए जिस तरह के ये 4 बनाए गए हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में उन युवाओं को उनके स्किल को भी ट्रेंड किया जाएगा, और स्किल के साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। तीसरी बात कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया। आप देखते हैं अभी तक सरकारों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च होता था, इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है। जो हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है या रेल है, तो इस पे तो ये इस बात को साबित करता है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे GDP का 3.48% जब विकास पे खर्च होगा, तो उस 3.48% से जो परिसंपत्तियाँ उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने पहली बार देखा कि बजट पे खास तौर से फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचों पे। तो जब बुनियादी ढांचा बनेगा तो मेन फोकस है कि किस तरीके से मतलब हम अपनी इन बुनियादी ढांचों को करें जिससे कि देश में हम युवाओं को रोज़गार दे सकें। और देश में आपने देखा कि महिलाओं पे भी कितना जोर दिया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं महिलाएं या और हैं, 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए पैसा दिया। ये बजट देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर से एयरपोर्ट से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके बिहार के विकास से लेके फ्लड से लेके सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वहीं
चाहे हर तरह की चीज़ों पर अगर किसान के लिए एमएसपी की बात हुई है, वहीं कैंसर रोगियों के लिए 3 दिन दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी के एग्जेम्पशंस हुई हैं। मैं समझता हूँ ये बजट सभी के साथ के विकास के लिए, आम आदमी के लिए का बजट है। जिस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर स्लैब्स को उठा के 3 लाख से लेकर 7 लाख, 7 लाख से लेकर 5%, 10% सिंप्लीफाइड किया गया है, जिसमें करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर एक्शन लिया गया है और फैमिली पेंशन पर 15,000 से लेकर 25,000 किया गया है। तो मैं समझता हूँ सभी तरह के लोगों का ध्यान इसमें रखा गया है। आज उनको बिहार को सौगात मिला है। वो अगर आपका विद्युत विभाग हो तो आप देख सकते हैं कि पीरपंथी भागलपुर में 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बन रहा है। बाढ़ की समस्या रहती है, वहाँ पे फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,000 करोड़ मिला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में 26,000 करोड़ है। महिलाओं के डेवलपमेंट को लेके विमेन लेड डेवलपमेंट जो होता है उस पर फोकस करते हुए 3 लाख करोड़ का पैकेज निकला है। इसके अलावा जो रोज़गार को लेके मुद्दा था उसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा उनका फोकस है कि किस तरह से EPFO के साथ मिलकर रोज़गार को बढ़ाया जाए, रोज़गार को 3,000 महीना दे करके कैसे नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट कंपनीज़ को दे करके नए नए रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। तो हम मानते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंसेप्चुअलाइज्ड बजट है जो देश की मांग थी। ये जो बजट है वो युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को और अन्नदाता को देखते हुए बनाई गई है और बहुत ही अच्छा बजट है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसका पूरा जो नींव है, बुनियाद उसको मजबूत करने का ही ये पूरी बजट है और समाज की हर क्षेत्र को नज़र रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। पिछले 10 सालों में अगर आप देखे होंगे जो भी बजट उन्होंने देश के सामने रखा उसका पूरी जो है धरातल में उतारने का काम किया और इस बजट में भी जो भी आश्वासन पूरा देश को दिया गया, इस प्रस्ताव रखा गया, उसका पूरी विकसित भारत के मजबूत बनाने के लिए, उसको अचीव को हासिल करने के लिए पूरी धरातल में इसको उतारने का काम करें। संसद टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे विद्युत नारायण महतो जी, जिन्होंने बताया किस तरह से 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार का ये पहला बजट था और पहला कदम भी है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।